Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. My today's lecture is very important and interesting. That is, gold price crash, is the bull run over? Friends, you know, since last 2 years, every investor is looking towards two things. One is gold and other one is silver. Silver, you know, it has given highest return among asset classes in 2025, and in 2026 it touched around 4 lakh, around 4 lakh 20,000 rupees in Indian silver market, जो कि बहुत अगर if I talk in terms of ounce, it touched around 117 118 per ounce in January. Or same is the case with gold, कि gold touched around US dollar 5600 in January end, और 1,80,82,000 के करीब इंडियन रुपी में प्राइस. और उसके बाद द स्टोरी स्टार्ट्स दैट दिस गोल्ड एंड सिल्वर हैव शोन डिक्लाइन, और डिक्लाइन भी मैसिव डिक्लाइन हुआ है. 4,20,000 से इस टाइम प्राइस 2,15,000 कम से बिल्कुल से ऐसे कहो कि आधा हो गया. और गोल्ड का प्राइस अगर आप देखो 1,82,000 से इस टाइम 1,40,000 41,000. कंपेयर टू सिल्वर, गोल्ड में प्राइस थोड़ा कम फॉल गया, सिल्वर का डिक्लाइन ज्यादा शार्प हुआ है. जैसे कि आपको मैं बिफोर आई मूव फर्दर, usual disclaimer that this presentation is only for educational purpose. Investment involves risk, and you have to take the advice of your financial advisor before taking any investment decision. We are not giving any advice. What we are going to do in today's presentation, in recent times there have emerged certain reports in media of important financial bodies of the world, and they have said something about gold, कि कुछ उन्होंने गोल्ड के बारे में कहा है. हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं, नथिंग एल्स. अपनी तरफ से हम कोई आपको सजेशन नहीं देंगे. लास्ट में आपको ये जरूर कहेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर क्या इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है. अगेन दैट विल बी ओनली बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स. पर्सनली वी आर नॉट गिविंग एनी एडवाइस. सो बिफोर आई मूव फर्दर, सबसे पहले आपको कॉमेक्स के इस टाइम के प्राइस पे लेके चलूं. गोल्ड जो है 4052, गोल्ड इज ट्रेडिंग अराउंड 4052, एंड सिल्वर इज ट्रेडिंग अराउंड 58.150. both are showing green signals, that is they are showing rise. But what I am saying is that since January this decline is continuing, and gold is consolidating around 4053, और इसके बाद ये कभी 3900 $3,900 $3,950 के राउंड अबाउट आता है, फिर 4,000 के ऊपर चला जाता है. बट सिंस लास्ट 1 month this gold is hovering around $4,000 per ounce. So question ये होता है, is it a consolidation phase or further pain is still ahead? This is what we are going to analyze in today's presentation. और अगर आप कॉमिक्स की साइट पे ही देखो तो इन्होंने कुछ साइट्स पे न्यूज आइटम्स दिए हुए हैं. कहता है गोल्ड डिप्स एज ऑयल प्राइसेस राइज एंड फेड रेट हाइक चैटर इंक्रीजेस, कि जैसे ही फेड रेट इंक्रीज करता है तो गोल्ड का प्राइस डिक्लाइन करता है, बिकॉज पीपल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट. सो यू हैव टू कीप ए क्लोज लुक ऑन दिस फेड रेट. And then one more thing, that gold for worst weekly drop in 6 weeks, drops in 6 trading sessions as Iran war fans inflation fears. ये जुलाई 17 की ईरान वार भी इफेक्ट कर रही है, जियोपॉलिटिकल रीजंस भी इफेक्ट कर रहे हैं, यूएस फेड पॉलिसी भी इफेक्ट कर रही है. सो गोल्ड यहाँ पर. लेकिन व्हाट द इंपॉर्टेंट बॉडीज, ये तो करंट प्राइस की बात हो गई, व्हाट द इंपॉर्टेंट financial bodies of the world are saying regarding this gold price, that is the core of my presentation today. So let us begin with our presentation. The first thing, this which has spread panic around the whole world, that is around the investors, वो है बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट. उन्होंने एक टर्म क्या उन्होंने कहा, the gold is heading towards death cross.
Now, what is this death cross? Very interesting. कहता death cross is when 50-day moving average falls below 200-day moving average. कि जब किसी चीज के प्राइस की 50-डे मूविंग एवरेज उसकी 200-डे मूविंग एवरेज से नीचे आए, दैट इज डेथ क्रॉस. 50-day moving average crosses below 200-day moving average, and this signal potential downside. कि ये डेथ क्रॉस अकर कर रहा है गोल्ड के प्राइस में, और इसके कारण फर्दर डाउनस्लाइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड है. वो कॉशन करते हैं गोल्ड रैली में बी ओवर एक्सटेंडेड की ज्यादा हो गई रैली, इट मे गो डाउन. देन लेट मी कम दिस टू फुल स्क्रीन. यस, देन gold rally may be overextended, risk of correction increases, stronger US dollar and higher yield could pressure gold prices, profit booking and slowing demand may lead to further downfall. कि ये पहली रिपोर्ट कहती है कि downfall is expected. So investors should stay cautious in the near term. उन्होंने एक तरह से सिग्नल दे दिया कि investor must remain cautious in near term. Now अब जो एक बड़ी ऑथेंटिक बॉडी है वर्ल्ड की, दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इन्होंने एक बेस्ड ऑन हाफ ईयरली रिजल्ट्स, हाफ ईयरली ट्रेंड्स, इन्होंने एक सिनेरियोज एंड प्रोजेक्शंस दी हैं, और वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट उन्होंने दिया है. पहले तो इन्होंने जनवरी 25 से जुलाई 26 तक गोल्ड प्राइसेस को इन्होंने ट्रैक किया है, और ये देखो यहाँ पर ये 5500 जनवरी एंड फरवरी बिगनिंग में टच करता है, और उसके बाद जुलाई 26 ये इट इज hovering अराउंड $4,000. तो पहले तो प्राइस ट्रैक कर दिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने 3 सिनेरियोज दिए हैं कि गोल्ड के प्राइस में क्या सिनेरियोज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक्सपेक्ट कर रही है. करंट सिनेरियो इज $3900 to 4300 ounce की करंट सिनेरियो में गोल्ड प्राइस इतना है. फ्यूचर अप ट्रेंड सिनेरियो कहते हैं कि अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इट में गो अप टू $4300 to 4900 पर आउंस. अगर अप ट्रेंड आएगा तो ये इस रेंज में आएगा 4300 to 4900, और अगर प्राइस कंसोलिडेशन ये करेक्ट करता है तो 3400 to 3900 डॉलर तक ये जाएगा. ये इन्होंने कहा जी करेक्ट यहां तक करेगा, और अप ट्रेंड यहां तक एक्सपेक्टेड है. What if it crashes below 3400? Then anything can happen. लेकिन जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि करंट ये है, ये इट विल hover around $3900 to $4300. In uptrend scenario, it can go to $4900 per ounce, and in downtrend it can come down to $3400. सबसे पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये सिनेरियो दिया है. Gold's current price is in line with macro consensus expectation, but deviations from this environment can resume gold upward trend or bring price consolidation. कि जो करंट सिनेरियो में गोल्ड का प्राइस जो चल रहा है, करेक्शन चल रही है, ओके, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड रेट हाइक, इसलिए ठीक है थोड़ी करेक्शन और हो सकती है. लेकिन अगर सिनेरियो होल्ड, मैक्रो सिनेरियो होल्ड करता है, if environment improves then it can resume its upward journey, or if it deteriorate then it can reduce. तो ये उन्होंने रेंज दे दी. सबसे पहली बात आ गई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की. अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, दिस इज द टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, क्या था, गोल्ड आउटलुक बेस्ड ऑन हाफ ईयरली रिजल्ट्स 2026, इट इज पॉजिंग नॉट एंडिंग द बुल रन. इन्होंने कहा जी इट्स जस्ट पॉजिंग, कोई ये बुल रन खत्म नहीं हो रहा. क्या कहा, बिग पिक्चर, द बुल मार्केट इज पॉजिंग, कि थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है. देखो क्या कहता है, वाइल गोल्ड्स हिस्टोरिक मल्टी ईयर बुल रन हैज कूल्ड एंड एंटर ए करेक्टिव फेज, many analysts and fund managers believe that broader structural bull market is rather pausing rather than permanently ending. एंड नहीं हो रहा, जस्ट पॉज कर रहा है. रिसेंट करेक्शन बट लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स आर इंटैक्ट. कहता है रिसेंट में करेक्शन है लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई चेंज नहीं हुआ. वो कहता है गोल्ड रेट हिट रिकॉर्ड हाई अर्लियर दिस ईयर बट हैज रिसेंटली करेक्टेड, ड्रॉपिंग अप टू 27% तक ड्रॉप हुआ है. Correction may be driven by profit taking, a stronger US dollar and global macroeconomic shifts. ये भी आपको बताया कि ये जो करेक्शन हुई है ये
एक रीजन इसका प्रॉफिट टॉकिंग, एक यूएस फेड पॉलिसी और तीसरा जियोपॉलिटिकल रीजंस, इसके कारण नीचे आया है। डिस्पाइट द कूलिंग मोमेंटम, ये इन्होंने कंक्लूजन है एक तरह से, डिस्पाइट द कूलिंग मोमेंटम मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक फिडेलिटी इंटरनेशनल एंड बैंक ऑफ अमेरिका expect the core driver to support gold, कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा इस टाइम तो डेथ क्रॉस है, लेकिन इसका कोर ग्रोथ अभी स्टिल इंटैक्ट है, और वी कैन से दैट दिस इज ओनली ए पॉज एंड गोल्ड विल कंटिन्यू इट्स बुल रन। देन व्हाट्स ड्राइविंग गोल्ड लॉन्ग टर्म, ये किस बेस पे लॉन्ग टर्म को कहते हैं ठीक है? स्ट्रक्चरल सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन, किस सेंट्रल बैंक्स ने अपनी परचेजिंग कम नहीं की, दे आर इंटेंडिंग टू डाइवर्सिफाई, लुकिंग एट जियोपॉलिटिकल रीजंस दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग, डी डॉलराइजेशन कंसेप्ट गेन कर रहा मोमेंटम, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। परसिस्टेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब भी ज्यादा क्राइसिस होता है तो सेफ हेवन इज ओनली गोल्ड। एंड द थर्ड वन, हाई ग्लोबल सॉवरेन डेट, जितना डेट ज्यादा होगा उतना ये प्राइस बढ़ेगा। ये कहते हैं राइजिंग डेट लेवल्स इंक्रीज लॉन्ग टर्म रिस्क, सपोर्टिंग गोल्ड रोल एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो पहली रिपोर्ट द टाइम्स में छपी वो ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक पॉज है और बुल रन कहीं खत्म होने वाला नहीं है। देन फिडेलिटी इंटरनेशनल की मल्टी एसेट पोर्टफोलियो मैनेजर आयन सैमसन expects the gold market to resume in 2027. Fidelity International में Ian Sampson expects the gold bull market to resume in 2027, कि 2027 में ये resume करेगा। 2026 पॉज का ईयर है, 2027 में resume करेगा, और फ्रॉम जनवरी 2000 पीक ऑफ इतना 5600 पर आउंस, सैमसन सक्सेसफुली टाइम्ड द मार्केट बाय रिड्यूसिंग फिडेलिटीज गोल्ड exposure to neutral early in 2026, but now plans to return to an overweight gold position. ये predict करते हैं कि 2026 में ये bull run continue करेगा। Upcoming bull market, Samson expects the yellow metal to re-enter a structural bull market in 2027. दोबारा price outlook कहता है after plunging 14% in 2026, prices are holding near $4,000. मैंने आपको अभी बताया। A tactical buy signal will trigger when the 50-day moving average crosses a long-term indicator, कि 50-day moving average जब वो फिर से 200 DEM से ऊपर आ जाएगी तो ये लॉन्ग टर्म ट्रिगर करेगी, और ये प्राइस जो है $4,300 के अबव। अब ये कब करता है, दैट्स ओनली टाइम विल टेल। देन सेंट्रल बैंक बाइंग, ये आपको बताया मैंने। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, द बुलिश थीसिस विल रिमेन फर्मली इन प्लेस अनलेस द ग्लोबल इकोनॉमी रिटर्न्स टू ऑर्थोडॉक्स फिस्कल पॉलिसीज पे आप ना आ जाओ तो सेंट्रल बैंक्स विल सक्सेसफुली ड्राइव इन्फ्लेशन डाउन टू नॉर्मल टारगेट। इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगा। सो अगेन second report also positive that it is only a pause and 27 is again a golden year. Then आता है JP Morgan, again another important financial body। ये कहता है एक ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने छापी, विल गोल्ड प्राइस हिट ऑल टाइम हाई अगेन इन 2026। क्या ये ऑल टाइम हाई प्रेडिक्ट करने वाला है? कहता है जून 9 2026 स्पॉट गोल्ड प्राइसेस हैव रैलीड एंड reiterated this year. What is the latest gold price forecast? Are central banks still buying gold? The future is uncertain and may stay that way. Uncertain है, रहेगा थोड़ी देर के लिए। उन्होंने क्या कहा, की टेक अवेज क्या थे इनके? इन द 2026 and 26 outlook for gold price remain ahead of current levels, with JP Morgan global research analyst expecting gold to push, ये देखो very interesting, $6,000 per ounce by year end and $6,300 by 2020। वेरी बुलिश कि $6,000 तक जा सकता है ईयर एंड, और 6,6300 तक 6,300 in 2020 से। However, future demand and price stability seems to depend on resolution of ongoing geopolitical conflicts and Fed policy। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, दो चीजें, जियोपॉलिटिकल रीजंस और फेड पॉलिसी, ये आने वाले टाइम में, ये भी जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि गोल्ड के रेट को ड्राइव करेंगे। अनलेस दीज फैक्टर्स रिमेन फेवरेबल फॉर गोल्ड, गोल्ड मे रिमेन इन दिस फेस ओनली। देन सेंट्रल बैंक्स डिमांड फॉर गोल्ड विच ड्रोव मच ऑफ द प्रेशियस मेटल राइज ओवर द
past year appears to have cooled. Though a closer look at the data tells a more कि लगता है कि सेंट्रल बैंक की परचेजिंग कम हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं. सेंट्रल बैंक्स की परचेजिंग इज कंटिन्यूइंग एंड जेपी मॉर्गन कहता मोर और लेस ये बुलिश हैं कि $6,000 by the end and $6,300 in 2027 unless they revise their report. ये उनकी करंट रिपोर्ट है जून 9, 2026 की. देन किटको न्यूज रिपोर्ट्स. एक किटको ने एक रिपोर्ट दी है. गोल्ड इज इन कंसोलिडेशन बट लॉन्ग टर्म आउटलुक रिमेन्स बुलिश. कहता गोल्ड हैज एंटर्ड ए कंसोलिडेशन फेज स्ट्रगलिंग टू होल्ड 4,000. मैंने आपको बताया $4,000 कभी 3,900 के बीच में आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, बट इट इज कंसोलिडेटिंग अराउंड $4,000. Sticky export level due to a stronger dollar, sticky inflation and persistent geopolitical. ये बार बार बात कर रहे हैं कि इनके कारण ये 4,000. Despite this near-term pressure, major institutional analysts view the pullback as buying opportunity. वो कहता है ये तो एक buying opportunity है और 2026-7 में ये $5,800 to $6,000 per ounce होता है. So they are considering it as a buying opportunity. So लॉन्ग टर्म टारगेट ये दिया बाय द एंड ऑफ 2027. फिर की ड्राइवर्स क्या हैं? स्ट्रक्चरल डेफिसिट एंड डेब्ट, एस्केलेटिंग गवर्नमेंट डेट, बर्डन्स एंड परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट, सेंट्रल बैंक्स एक्यूमुलेशन, नियर टर्म हेडविंड्स, फेडरल रिजर्व्स मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट. Analysts like Wells Fargo and Fidelity remains long-term structural bull. एक Wells Fargo की भी रिपोर्ट हम बात करेंगे. तो अगेन किटको की रिपोर्ट ये कहती है कि लॉन्ग टर्म बुलिश $5,800 to $6,000. And last of all, we are having Wells Fargo report via Kitco. Gold bull run has room to run. As inflation risk, fiscal deficit कंटिन्यूसली राइज कर रही हैं, इसलिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे. इन्फ्लेशन रिस्क कर दिया. वेल्स फार्गो एक प्रॉपर फाइनेंशियल बॉडी है यूएसए में. Analysts in a report featured by Kitco News say gold's run remain uptrend remains intact, driven by macroeconomic uncertainties, inflation and rising government debt. Government debt, inflation, geopolitical risk, इसके कारण लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल गोल्ड के लिए पॉजिटिव है. की रीजन बिहाइंड गोल्ड स्ट्रॉन्ग बुल रन, इन्फ्लेशन रिस्क आर देयर, ये आपको बता चुका मैं. फिस्कल डेफिसिट राइजिंग है, जितना बढ़ेगा फिस्कल डेफिसिट गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा. जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चरल डिमांड ऑफ सेंट्रल बैंक्स. मोर और लेस 3-4 पॉइंट्स निकल रहे हैं हर एक रिपोर्ट पे. स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक डिमांड, फिस्कल डेफिसिट, जियोपॉलिटिकल रीजन एंड फेड रेट पॉलिसी, ये गोल्ड के प्राइस को डिराइव करने वाले हैं. तो एंड कंक्लूजन क्या लिखा देखो इन्होंने लॉन्ग टर्म प्राइस डायग्राम, फिर 5,800 और 6,000 कि ये जितने भी फाइनेंशियल बड़े बड़े फाइनेंशियल बॉडीज हैं, दे आर सेइंग दैट दिस बुल रन विल कंटिन्यू इन 2027 एंड दे कंसिडर दिस डाउन ट्रेंड, दिस डाउन मार्केट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. तो फ्रेंड्स ये एक सिर्फ इस रेस पे बेस्ड इन स्टडीज पे बेस्ड एक प्रोजेक्शन है कि ये एक करेक्टिव फेज है और ये शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म 2027 गोल्ड के लिए एवरी फाइनेंशियल बॉडी इज लिविंग ए साइड फ्यू. ये पॉजिटिव है. बैंक ऑफ अमेरिका का डेथ क्रॉस, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ये भी इंप्रूव कर जाएगा. और लॉन्ग टर्म जो इसका गोल्ड की प्रोजेक्शन है, they are all positive about it. So conclusion क्या है? The gold bull market has room to run. Strong fundamentals, long term drivers are powerful, ये सारे बता चुका मैं. Near term volatility is normal. आजकल जो volatility जा रही है. Wells Fargo remains constructive. Wells Fargo की रिपोर्ट आपको बता दिया. Strategic role for investment. Gold should remain a core part of diversified portfolio. ये gold जो है एक core part रहना चाहिए आपकी पोर्टफोलियो का. The big picture. The gold bull market, ये conclusion आ गया, is not over. Strong macroeconomic tailwinds and fiscal imbalances provide the fuel for next leg higher. और ये तो आपको मैंने कई बार बोल दिया, ये रिस्क हैं. Inflation, fiscal deficit, central bank, geopolitical diversity. Every point will have its impact on gold. So,
कंक्लूजन निकाला हमने, स्टे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, मैनेज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को मैनेज करो, लॉन्ग टर्म में ये ठीक है, एंड लेट गोल्ड प्ले इट्स रोल एज ट्रस्टेड स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर लॉन्ग टर्म, कि ये ट्रस्टेड सोर्स है ऑल टाइम टू कम, दिस विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी, एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट की पहचान है। तो एंड रिजल्ट है कि बुल रन इज स्टिल इंटैक्ट, और ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लॉन्ग टर्म में ये दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्ट ऑफ ऑल अगेन मैं फिर कहूँगा कि डू सपोर्ट माई चैनल, डू सब्सक्राइब, अनलेस यू सब्सक्राइब एंड शेयर माई presentation, like my presentation, we are now heading towards nothing. आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इसको करो, ताकि हम इसी तरह से अच्छी वीडियो आपको मैं लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो राउंड अबाउट इन 1 or 2 days we are coming, and that will be for silver. Thank you. See you again.